بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پچھلے دنوں ایک خاتون تشریف لائیں، کوئی 30-31 سال کی عمر ہوگی. 2 بچے ان کے ساتھ تھے، بچے چھوٹے تھے ابھی. انہوں نے آ کے پہلی بات جو مجھے کہی کہ میں صرف شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ کی صورت میں ہمیں ایک ایسا فرد اور ایسا ادارہ مل گیا ہے کہ جب دل پہ بوجھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کہیں دل میں تھوڑی خود بدھ ہوتی ہے کہ کہیں پرابلم ہے اور جس کا ذکر ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے، تو ہم آپ سے آ کے مشورہ کر لیتے ہیں. اتنی بات کہنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا آپ کا گلا خراب ہے. میں مسکرایا. پھر انہوں نے کہا آپ نے اپنی مونچھوں کا سٹائل بدل لیا. میں پھر مسکرایا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا سٹائل بدلا؟ انہوں نے کہا پہلے یہاں پہ کٹ تھا، اب آپ نے ان کو تھوڑا سا نیچے کر لیا. تو جب وہ یہ دونوں باتیں کہہ چکی تو میرے من میں یا اندر یہ دونوں رجسٹرڈ ہو گئے، اور لیکن میں نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا. میں عام طور پہ بہت سی باتوں کو پی جاتا ہوں. اب جب انہوں نے اظہار خیال کیا جس مسئلے کے لیے وہ تشریف لائی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اسکول میں جاب کی اور خیال تھا کہ اپنے میاں کو تھوڑا ہیلپ آؤٹ کروں گی، اور دوسرا کہ ایک بچہ میرا اسکول گوئنگ ہوا تو اس کو تھوڑا کنسیشن بھی مل جائے گا. تو جس ادارے میں جاب کی وہ لاہور کے بڑے اداروں میں سے ہے. ان صاحب کے کچھ 4-5 ادارے ہیں اور اچھے، مطلب کئی کی کنال میں واقع. اچھا، یہ خاتون اگر وہ مائنڈ نہ کریں تو میں یہ کہوں گا کہ بمشکل قبول صورت ہوں گی. سانولا سا رنگ ہے، بلکہ شاید تھوڑا گہرا سانولا ہوگا، اور قد ذرا لمبا ہے. اب ہوا یہ کہ جاب کے کچھ عرصے کے بعد ہی پرنسپل صاحب نے، جو مالک بھی ہیں، انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا آپ کام بہت خوبصورت کرتے ہو، جو ڈرائنگ آپ کراتے ہو مارولس. میرے ادارے میں اتنی اچھی ڈرائنگ اس سے پہلے کسی نے نہیں کرائی. اوکے، یہاں تک قابل قبول تھا، قابل برداشت تھا. پھر انہوں نے ایک روز کہا بہت اچھے لگ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے، کہاں سے لیے؟ پھر اگلی دفعہ کہا آپ بہت خوبصورت ہو. اچھا، خاتون عام ہو، شادی شدہ ہو، کہیں کوئی نہ کوئی بیریئر ضرور ہونا چاہیے جہاں آپ کا دل دھڑکے، جہاں آپ کی روح بالکل آپ کو وارننگ دے کہ آگے ڈینجرس علاقہ شروع ہوا. پھر ایک روز انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا تمہارے ہاتھ بہت اچھے ہیں. کیا؟ مخروطی انگلیاں ہیں. اچھا، ان کے ہاتھ بالکل اچھے نہیں تھے جو کہ میں نے خود دیکھے. ایسے ظاہرہ سامنے سے، گہلے سامنے سے ہاتھ ہیں. خوبصورت ہاتھ ہم عام طور پہ گول مٹول سے، خوبصورت وائٹ کلر والے گورے چٹے ہاتھوں کو کہتے ہیں، نازک سے. اچھا، جن ہاتھوں میں گھر کے کام کاج کی یہاں پڑی ہوئی ہوں، نشان بھی پڑے ہوں، اور ایک آدھ انگلی بھی ٹیڑھی ہو، وہ خوبصورت نہیں ہوتے. اچھا، اسی طور پہ جو خوبصورت پیر ہیں، اگر آپ کی نگاہ پڑے تو آپ کی نگاہ وہاں جم جاتی ہے، رک جاتی ہے. وہ اتنے گورے چٹے اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ اس پاؤں میں جوتا پہننے کے بعد جوتے کی شان بڑھ جاتی ہے. تو ایک لمحے کو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، وہ آپ کی اپنی بیوی کا ہو، آپ کے کسی عزیزہ کو ہو، ایون کسی خاتون کا اگر پہلی دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو اگلی نظر تو آپ کو وہاں سے روک لینی چاہیے، ٹکٹ کی باندھ کے نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا، اس خاتون کو جب اس نے یہ کہا کہ تمہارے تو پیر بھی بڑے خوبصورت ہیں، جوتے بھی بڑے خوبصورت ہیں، تو انفیکٹ یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ کو فوراً محسوس ہو جانا چاہیے کہ موصوف محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اٹس اے ٹریپ. خوبصورت چہرے کی، خوبصورت آنکھ کی، خوبصورت ماتھے کی، گلو کرتے ہوئے چہرے کی کوئی تعریف کرے تو چلیں بات بھی بنتی ہے. ایک مرجھایا ہوا، کام میں دبا ہوا، مڈل کلاس کا چہرہ، اور جس کی شادی بھی ہو، جس کے بچے بھی ہوں، جس کا میاں بھی ہو اور ضرورت مند ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پورا ٹریپ اس خاتون کے لیے بچھایا گیا یہ نیا نہیں ہے. یہ ٹریپ جگہ جگہ اداروں میں بچھایا جاتا ہے، اسکولوں میں خاص طور پہ، اکیڈمیز میں بالعموم. اور بچھانے والے کوئی جاہل مطلق نہیں ہوتے. ان کے چہروں پہ مت جائیے، ان کی نیت پہ جائیے، ان کے لفظوں پہ جائیے. وہ خاتون مجھ سے پوچھنے آئی تھیں کہ اب میں کیا کروں، چونکہ یہ صاحب تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں. انفیکٹ یاد رکھیے گا، جب آپ کا کسی جگہ مالی مفاد جڑا ہوا ہو اور آپ کی اخلاقی حصار جاں تگڑا نہ ہو، مضبوط نہ ہو، یہ جو پرانی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ انجان مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے تھوڑا ڈسٹنس کرنا چاہیے، اپنی آواز کو بہت نرم نہیں کرنا چاہیے. انفیکٹ جب بھی ہماری بچیاں یا ہماری عورتیں
जॉब करते हुए थोड़ा लिहाज में आती हैं, यानी बेमरवत नहीं होती, बदतमीज़ नहीं होती, बदतहज़ीब भी नहीं होती। उन्हें लगता है कि जो कि बॉस है, प्रिंसिपल है, इसके साथ हमें शाइस्तगी से बात करनी चाहिए। पर ये गधे तो अंदर से वही जानवर के जानवर हैं, टारगेटेड। उनको शिकार चाहिए, और अगर उन्हें अपने अदारे में शिकार मिल रहा है तो पहले तो डाकू भी इनसे 100 गुना अच्छे थे कि 7 गांव छोड़ के अपने गांव के आसपास के फिर जाके डाका मारने जाते थे, और उस और ज़माने के, उस अहद की, उस गांव के आसपास की विसिनिटी की जितनी लड़कियां होती थीं, उनके अपने गांव की हों, जब वहाँ ब्याह के आई हों, वो उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करते थे। इसीलिए पुरस्कून ज़माना था। थाने भी कहीं दूर दूर होते थे, और लोग रातों को, दिनों को मर्ज़ी से आज़ादाना आया जाया करते, और ख़वातीन भी मरब्बों में और दूसरे गांव में पैदल ही जाया करती थी, ना कोई ट्रांसपोर्ट होती थी। पर आप के अंदर को हया नाम की चीज़ वाक़या होती थी। जानवरों में एक आदत रब ने अजीब पैदा की है कि अगर इनका शिकार सामने हो और इन्हें भूख ना हो तो शिकार नहीं करते। यानी बेवजह मार मार के गिराने का और गोश्त को ख़राब करने का और नस्ल, उस जानवर की नस्ल को तबाह करने का कोई उनके अंदर दाइया नहीं होता। इसके बिल्कुल बरक्स इंसानों के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गलत दाइया पैदा हुआ। जो शिकारी हैं वो अपनी शक्लें शिकारी बनाते हैं, वो अपनी आवाज़ें शिकारी बनाते हैं, वो अपनी लहजे को शिकारी बनाते हैं। अब जब वो चारों तरफ से घेरने पे तैयार होते हैं, कभी ये शिकार उनका मासूम बच्चियाँ बनती हैं जिन्होंने एमए करके, बीए करके एडवेंचर के लिए, सीखने के लिए, कभी कभी कमाने के लिए जॉब की होती है, और वो इनकी मुस्कुराहटों का, वो इनकी तारीफ़ों का, क्योंकि ये तारीफ़ें आमतौर पर घर वालों ने नहीं की होती। पर अगर आपने कभी आईने में बतौर ख़ास अपने आप को देखा है, अगर आप अपने आप को ग्रूम करते हो, अगर आप अपने जिस्म का ख्याल करते हो, आप सफाई सुथराई का ख्याल करते हो, तो आपका ध्यान अपने जिस्म पे, अपनी उंगलियों पे, अपने पाँव पे ज़रूर जाता है। और लड़की को अल्लाह ने बाकी लोगों की निस्बत 100 गुना ज़्यादा अक्ल दी होती है। तो आप ये भी जानते होते हो कि ये जिस्म या ये हाथ पाँव किसी मुकाबला हुस्न में जाने वाले नहीं हैं। अब तारीफ़ करने वाला को बज़ाहिर बहुत नेक आदमी हो, जिसकी शक्ल में नेकी लिखी हुई हो, अगर वो ये तारीफ़ कर रहा है तो अव्वल व आखिर सर से पाँव तक वो झूठा है, और वो आपको ट्रैप करके आपको शिकार करेगा, आपको ज़िबा करेगा इस आलम में कि आप चीख भी नहीं सकोगे, और ज़िबा होने के बाद आप रो भी नहीं सकोगे, क्योंकि उस ज़बीहा में आप भी उसके साथ शामिल हो जाओगे बेध्यानी में। पर अगर आपके अंदर देखिए जो हसासियत है, सेंसिटिविटी कह लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको पता चलता है ना कि मेरा जो फ़लाँ अज़ीज़ है मेरे बच्चे से मोहब्बत नहीं करता, फ़लाँ अज़ीज़ मेरे मियाँ की इज़्ज़त नहीं करता, फ़लाँ अज़ीज़ा हमारे जाने पे खुश नहीं होती, हमको इंटरटेन नहीं करती, हमारी अच्छी मेज़बानी नहीं करती, फ़लाँ दुकानदार झूठा है, फ़लाँ दुकानदार बहुत अच्छा माल देता है, फ़लाँ लूटता है, फ़लाँ डाकू है, और फ़लाँ बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस लेता है। कैसे हमको पता चलता है? इसका मतलब है मेरे मेहरबान रब ने हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारी अक्ल में, हमारी फ़हम में कहीं ना कहीं पैमाना तो रखा हुआ है। जब लड़कियां किसी वैगन वाले ड्राइवर के हाथों ट्रैप होती हैं तो उस लम्हे भी अगर उन्होंने ये समझा हुआ हो कि उनको ट्रैप करने वाला उनके म्यार का नहीं है, बहुत बिलो द म्यार है, और ये जो कह रहा है ये ना उसको सूट करता है, ना उसको जज करता है, ना उसको ज़ेब देता है, और ना ही उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। लाइक ज़िंदगी में जब भी कोई मैच बनता है तो एक जैसा बनता है, और ये उस वक्त बनता है जब आप अवेलेबल होते हो। एक शादीशुदा लड़की और औरत और ख़ातून जिसके बच्चे भी हों, जिसका मियाँ भी हो, और वो इतनी लॉयल हो अपने मियाँ के साथ कि उसका बोझ बिठाने के लिए वो छोटी मोटी जॉब के लिए बाहर निकली हो, तो ऐसे चालाक इंसानों के जुमलों से फ़ौरन उनके दिल के अंदर वो जो सुर्ख बत्ती है वो जलनी चाहिए, लहरानी चाहिए। वो मेरे पास तशरीफ़ लाई थी कि मैं क्या करूं, तो मैंने उनसे जो गुजारिश की कि आप चाहते हैं कि आपको बताऊं, वैसे आपके सामने अगर इस तरह का मसला पेश आए तो क्या करेंगे? आप उन्हें कहेंगे कि मुँह तुम सख्त कर लो और तुम उससे मिला ना करो। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, पूरे स्कूल में किसी की तनख्वाह उन्होंने नहीं दी, इसकी तनख्वाह उसको दे दी, पूरी की पूरी, काटी भी नहीं। क्या उस लम्हे भी आपका दिल नहीं धड़कना चाहिए? छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं
जहाँ से आपका दिल को पता चलना चाहिए। अगर दिल सोया हुआ है, सिग्नल सोए हुए हैं, जो रेड बल्ब है वो फ्यूज़ हुआ तो भी आपको इल्म होना चाहिए कि अगर आप इस ट्रैप में आ गए तो यू नीड टू पे द प्राइस, एंड यू वुड पे द प्राइस। वो प्राइस इतनी बड़ी होगी कि ख़ुद आप शर्मिंदगी से अपना सामना नहीं कर पाओगे, अपने घर में सामना नहीं कर पाओगे, अपने मियाँ के सामना नहीं कर पाओगे। और सबसे अहम ये कि जिस रब ने आपको अकल दी थी, फहम दिया था, तदब्बर दिया था, दानाई दी थी, जब वो पूछेगा कि बीबी तुम्हें इतनी दौलतें दी, तुम्हें ये समझ नहीं आई, तुम्हें ये तो समझ आ जाती है कि सुई लगी है तो पेन हुई है, उई करके पीछे हाथ कर लेते हो। तो जब ऐसे कानों में सुइयाँ लगती हैं इस झूठी तारीफ़ की। मुझसे एक बच्ची ने पूछा, आयशा यूसुफ ने, कि सर मैरिज काउंसलिंग शादी से कितना अर्सा पहले करनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैरिज काउंसलिंग तो प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए, पर अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वक्तन फ़क्तन पोस्ट मैरिज भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए कि जिस लम्हे हम आमतौर पे अपने आप को सेफ़ महसूस करने लगते हैं, यानी बहुत सी बच्चियाँ क्लासेस में इसलिए फंस जाती हैं कि अपने आप को वो समझती हैं अक्लमंद हूँ, मैं सेफ़ हूँ और किसी की ज़रूरत नहीं होगी मुझे छेड़ने की। तो लोग छेड़ते नहीं हैं, लोग कानों के ज़रिए आपके दिल तक उतरते हैं और वहाँ से आपके जिस्म को चुरा लेते हैं, डकैत बन के, चोर बन के। तो इसी तौर पे प्री मैरिज काउंसलिंग शादी से ज़रा पहले करानी चाहिए। बस पोस्ट मैरिज काउंसलिंग तो जब जब आपको ज़रूरत पड़े, जब जब आपका दिल धड़के। अच्छा, प्लीज़ अपनी दोस्तों के साथ मत किया कीजिए। दोस्तों को आपकी ये गलती या ब्लंडर है, दे वुड एंजॉय, कहीं ना कहीं वो इजहार कर देंगे, वहाँ से होते होते आपके ख़ानदान तक पहुँच जाता है और फिर आपके लिए ये एक अजीब सी बेइज्जती का बायस बनता है। सबसे अहम ये जो सियाने लोग कहते हैं कि जब जब घर से निकलो, पढ़ने के लिए निकलो या काम के लिए निकलो, तो अपने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले रुका करें 2 मिनट, आंखें बंद किया करें और प्यारे अल्लाह से कहा करें, ए अल्लाह, मेरा जिस्म, मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू सब आपके हवाले में, बेबस और बेकस। नंबर 1 ये। दूसरा, अपने प्यारे अल्लाह से ये कहा करें कि सर मुझे इतनी अकल और दानिश दें कि मैं ऐसे जालिम, झूठे, मक्कार और फरेबी लोगों को पहचान सकूं और उनसे अपने आप को महफूज रख सकूं। आयतुल कुर्सी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए घर निकलने से पहले। रास्ते में बजाय कि आप गाने गुनगुनाते जाएं और कानों में कुछ लगाया हुआ हो और गाने सुनते जाएं, आयतुल कुर्सी पढ़ते जाइए। जो आखिरी 4 सूरतें हैं उनको पढ़िए। अगर आपको सूरह मुल्क आती है, सूरह वाक़िया आती है, कुरान पाक की जो जो सूरतें आती हैं, उनको इस नीयत करके कि मैं अपने मजबूत, तवाना, सबसे शानदार, सबसे तगड़े और इस दुनिया के मालिक और खालिक के साथ जुड़ रही हूँ और उसके कलाम को अपनी हिफाजत के लिए पढ़ रही हूँ, तो यकीन मानिए ये सारे फरिश्ते आपके आसपास आपकी हिफाजत के लिए आ जाएंगे और आपकी इज़्ज़त को बचाने के लिए। ये बच्ची भी पढ़ती थी, इसीलिए मेरे रब ने उसको ट्रैप होने और बर्बाद होने से बचा लिया। एंड शी केम टू मी, और मैंने उससे कहा कि बच्चे, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं, ये आदमी कभी अपनी एफ़र्ट करने से बाज नहीं आएगा, इसलिए कि उसे लगता है तुम कमज़ोर मोहरा हो जो जल्दी वहाँ से खिसक लेगा और उसको वो उठा लेगा, इस्तेमाल करेगा और फेंक देगा, बाकी उम्र फिर रोते गुजरेगी। तो इन छोटे से फ़ायदे के लिए इस अदारे को छोड़ दो, किसी और अदारे को ज्वाइन कर लो, पर फौरी मत करना, कुछ वक्त के बाद। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।